Hello everyone, welcome back in this wonderful series of Zero to Hero. I know you guys have been waiting for this for so long, and as promised, I am back with a wonderful grammar session for you all. I know that this is a kind of a session which is it's there to cater for all of you. चाहे आपको ग्रामर सीखनी है, चाहे आपको आइल्स की प्रिपरेशन करनी है, या आपको दोनों करना है, ठीक है? तो दिस सीरीज इज फॉर बोथ ऑफ यू एंड you can take it entirely as in grammar or entirely for IELTS as well. So let's get started without wasting any further time. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस की. आई नो कंजंक्शंस, व्हाई हैव आई स्टार्टेड विद कंजंक्शंस? आई नो ग्रामर की एक्सपेक्टेशन लेकर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैम तो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करेंगी विच इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ऐसा कुछ नहीं है. I'm here with those important topics which are not only important as a whole, but also they are very important when it comes to your IELTS preparation. So keeping in mind कि आपकी IELTS की preparation भी hamper ना हो और आपका grammar भी cover हो जाए. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं. So let's see what are the topics I'll be covering. First of all, let's talk about what is conjunctions. I know many of you or all of you might be aware of conjunction, but still क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं तो जिन्हें पता है वो रिवाइज कर ले और जिन्हें नहीं पता है वो जान ले. ठीक है, चलो. Now let's talk about types of conjunction, and that specifically I'll be talking about coordinating conjunctions, example, and उन्हें कहाँ कैसे यूज करना है individually or with respect to IELTS examination. चलो let's get started. So now फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कंजंक्शन. तो कंजंक्शन होता क्या है, कहाँ यूज होता है? आई नो कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, ये सबको पता है, राइट? बट डू यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज व्हेन इट कम्स टू योर कम्युनिकेशन और व्हेन इट कम्स टू योर राइटिंग पोर्शन? Conjunction plays a very major role when it comes to the usage and connecting different ideas together and frame a meaningful sentence. अब चलो एक theoretical portion देख लेते हैं. A conjunction is a word or phrase used to connect words, phrases or clauses within a sentence. Conjunctions are essential for constructing complex and cohesive sentences, allowing ideas to flow smoothly. अब यहाँ पे दो ऐसे टर्म हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं for you, which is complex and cohesive. अब मैम कॉम्प्लेक्स और कोहेसिव का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं इसे नॉर्मली बताऊं विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर, तो कॉम्प्लेक्स यानी वो सेंटेंसेस जहां पे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की नीड होती है. ठीक है, एक तो ये हो गया. कोहेसिव इज यू कैन से इन अ नॉर्मल सेंटेंस, कोहेजन का मतलब होता है टू गिव द ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बता रहे हो, अगर आप अपना डेली रूटीन बता रहे हो, ठीक है, अब क्या बोलोगे? अब मैं सुबह लाइक 7 o'clock पे उठता हूँ या उठती हूँ, एंड देन आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, एंड देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, एंड देन आई पैक माई बैग्स फॉर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज और ऑफिस, एंड देन आई वर्क फॉर like 8 to 9 hours, or I study for like 3 to 4 hours or 5 to 6 hours, and then I come back and then this is. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, जब आप स्केड्यूल बताते हो अपना, schedule or schedule, whatever you're telling, that should be in a very linear manner. मतलब should be in such a manner कि वो ना बहुत ज़्यादा awkward ना लगे. It should be in a sequence. So ये जो sequence है ना, इसी sequence को maintain करने के लिए हमें इसकी need होती है. Okay? Cohesion की need होती है. Cohesion is a term. ठीक है? अब cohesion हमें किससे आता है? कि अगर मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस रख दूं, उन दोनों सेंटेंसेस को बिना कनेक्ट किए आप कैसे कोहेजन ला पाओगे? एग्जैक्टली. So basically, when you are trying to connect those two sentences and trying to make a meaningful sentence, उसके साथ जो connecting word use हुआ है, जो term हमने use किया in order to connect those two sentences, again with respect to the demand of the situation. अब मैम demand of the situation क्या है? तो देखो यहाँ पे demand of the situation का मतलब है whether you are adding the sentence, मतलब whether you are adding a sort of information or you are providing a contradiction between them. अब adding और contradiction क्या होता है?
adding is when you add information. It's like, like for example, you're saying I would like to have bread, butter, कॉफी. ठीक है. अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने ब्रेड के साथ ये ऐड लगाया है, प्लस प्लस का साइन लगाया यहाँ पे, एंड देन बटर एंड देन कॉफी. ठीक है. अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं सिमिलर चीजों को, आई वुड लाइक टू हैव ब्रेड, मुझे ब्रेड भी चाहिए, मुझे बटर भी चाहिए, मुझे कॉफी भी चाहिए, एंड बिकॉज वी आर एडिंग, तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है. आप किसी से भी पूछोगे, इवन यू गाइज आर एबल टू टेल मी, यहाँ पे एंड लगेगा. ठीक है. अगर यहाँ पे एंड नहीं लगेगा तो चलो यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा. ठीक है, चलेगा. दिस इज व्हाट आई मीन. ठीक है. एंड का मतलब यू आर एडिंग अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर एडिंग डिफरेंट. अब ब्रेड बटर एक चीज होती नहीं है, दोनों अलग अलग चीज होते हैं. कॉफी भी एक चीज नहीं होती है. तो यू वांट ब्रेड, बटर एंड कॉफी. दिस इज व्हाट यू वुड से, राइट. नाउ अब बात आती है कॉन्ट्रडिक्शन की. तो जहां दो डिफरेंट ओपिनियन कोलाइड करते हैं वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है. अब इसको थोड़ा साइड रख दो. ठीक है. अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करते हैं. ठीक है. दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. थोड़ा रुक के, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टू मच फॉर यू टू टेक. ठीक है. चलो आराम से बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है. नाउ अलाउइंग आइडियाज टू फ्लो स्मूथली. तो इन टोटल इफ आई कैन जस्ट सम अप एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू एज ऑफ नाउ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में यूज होता है. विद इन द सेंटेंस लिखा था, राइट. जो एक सेंटेंस में यूज होता है इन ऑर्डर टू कनेक्ट सेंटेंसेस, in order to sequence it and in order to make it meaningful. ये क्लियर हो गया. आगे बढ़े. चलो, ये तो हो गया कंजंक्शन. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. देखो कंजंक्शन का उतना ही मतलब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, उससे ज्यादा कहीं पे कोई काम नहीं आता है. चाहे आप किसी भी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के टेस्ट को उठा के देख लो, या कहीं पे भी कोई भी ग्रामेटिकल टेस्ट को उठा के देख लो, एज अ सोल आप ग्रामर को भी देखोगे तो कंजंक्शन का बस इतना काम होता है. बट अगेन इट हैज अ डाइवर्स्ड काइंड ऑफ अ वर्क टू डू एज वेल. ठीक है. तो अभी उसको मैं बाइफिकेट करूंगी, जस्ट बेयर विद मी. नाउ अब यहाँ पे सबसे पहला टाइप ऑफ कंजंक्शन देखो. अच्छा मैं इन टोटल बता दूं तो देखो 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, इफ आई कैन बाइफिकेट देम इन टोटल. ठीक है. तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. 3 टाइप्स में दीज आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. ठीक है. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अब यहाँ पे आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट एक्यूरेटली. रटना नहीं है. इंग्लिश इज वेरी मच अलाइन टू मैथ्स. ठीक है. जैसे आप मैथ्स रट के नहीं कर सकते हो, वैसे ही इंग्लिश आप रट के नहीं कर सकते हो. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो, एंड यस दिस इज हाउ इट गोस. ठीक है. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. तो क्या करता है, इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, phrases or independent clauses of equal grammatical rank. अब मुझे ये बताओ कि independent clauses क्या होता है. ठीक है. I know lot of you might be knowing this, but still चलो मैं बता देती हूँ. Independent clauses को ऐसे समझना. अब देखो there are certain sentences जिनको नीड नहीं होती है किसी दूसरे सेंटेंसेस की इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर मीनिंग, वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जैसे मैंने बताया होगा यस, बट अगर नहीं बताया तो एक बार जान लो. देखो जल्दी से. अब जैसे मैंने ये लिखा है आई वर्क. ठीक है. डू यू नो दैट दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस? ठीक है. नहीं पता है तो जान लो, पता है तो रिवाइज कर लो. ठीक है. आई वर्क क्यों कंप्लीट है? अब इसका देखो लॉजिक एक बार ही देख लेना. दिस इज शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. अब यहाँ पे देखना आई वर्क, आई क्या है? अब छोड़ो, उसको छोड़ो, जाने दो, हटाओ, सब भूल जाओ. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है. ठीक है. सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए होता है? वर्ब चाहिए होता है, मतलब एक्शन चाहिए होता है. उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. ठीक है. यही चाहिए होता है. एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, राइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं आई वर्क. तो आई में हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, वर्क में हो जाएगा वर्ब,
एंड ऑब्जेक्ट की देखो कभी कभी नीड होती नहीं है, या होती भी है तो इट इज ऑप्शनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। अब आई वर्क यानी मैं काम करती हूँ, ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, व्हिच इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। देखा, एक साथ 4 टॉपिक कवर कर लिया मैंने, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, ठीक। आई वर्क सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं काम करती हूँ, हो गया सेंटेंस खत्म, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्यों, अब अगर आप इसी चीज को एक सेंटेंस में ऐड कर दोगे ना तो वो क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज इज नॉट द एंटायर सेंटेंस बट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। बट देयर आर सम क्लॉजेस जिनकी अपनी अलग मीनिंग होती है, बट देयर आर सम क्लॉजेस जिनकी अपनी अलग मीनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, एज आई हैड मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, नहीं होते मेरे पास यूजुअली नहीं होता है, तो क्योंकि मेरे पास पैसे थे, देखो यहाँ पे मैं थे बोल रही हूँ, मतलब है नहीं, खत्म हो गया, गरीब। तो क्योंकि मेरे पास पैसे थे, आई वेंट फॉर अ फॉरेन ट्रिप। एज आई हैड मनी, आई वेंट फॉर अ फॉरेन ट्रिप। क्योंकि मेरे पास पैसे थे तो मैंने कुछ किया होगा, देयर इज अ रीजन रिक्वायर्ड। तो एज आई हैड मनी इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए सपोर्ट दूसरे सेंटेंसेस का अपने सेंटेंस की मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो एज आई हैड मनी डिपेंडेंट क्लॉज, सो एज आई हैड मनी आई वेंट फॉर अ फॉरेन ट्रिप इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वहां पे आपका ये पूरा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉर्ट हो जाता है। नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर विद यू, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, अब समझ में आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है, इसका काम है वर्ड, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक में कनेक्ट करना, बस ये काम है इसका, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, लिस्ट है। अब लिस्ट है तो लिस्ट को याद करने का ना एक तरीका है, क्या तरीका है, फैन बॉयज, नहीं लड़कों का नाम नहीं है, ग्रुप, लड़कों का ग्रुप नहीं है, ये एक तरीका है याद करने का। बेसिकली इज एन अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है। अब यहाँ पे देख लो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, सो दीज आर आवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहती थी पर बारिश होने लगी, तो मैं नहीं जा पाई, ठीक है। शी इज काइंड एंड इंटेलिजेंट, शी इज काइंड एंड इंटेलिजेंट, वो काइंड भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, सो इट्स लाइक वी आर एडिंग अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर हियर। वुड यू लाइक कॉफी और ट्री, और सॉरी टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, चूज करने दिया जा रहा है, क्लियर। Advanced step to avoid repetition, use ellipsis with coordinating conjunction. She likes coffee, he prefers tree but dislikes milk. Now he is omitted after but because it's understood from the context. Pronoun पता होगा क्या होता है, ठीक है, which is used in place of noun. ये जो टर्म है ना बहुत कम यूज करते हैं आइल्स में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर मैं आइल्स की पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो, बट अगर एज इन जनरल करें तो तब भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि आइल्स में गलत है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि प्रोनाउन जब आपने बता दिया है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड समवन कि ही इज राम, ही लाइक्स दिस, ठीक है, तो बेसिकली राम, मुझे पता है उसका नाम राम है, एंड व्हाट ही डज, व्हाट ही लाइक्स इज लाइक, देन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोनाउन। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या दिया है, इट्स लाइक यू कैन यूज एलिप्सिस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, आप एलिप्सिस यूज कर सकते हो जहां पे जो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टूड है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, अब आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, what is subordinate conjunction? It helps or it connects a dependent clause to an independent clause in order to complete the sentence. अब क्योंकि मैम ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज तो बता दिया है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है यहाँ पे, डिपेंडेंट क्लॉज विच इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज अ कंप्लीट सेंटेंस,
ठीक है, ओके चलो पानी पी लो थोड़ा। बहुत बुलवाते हो तुम लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरा काम, इट्स माई जॉब टू प्रोवाइड यू गुड एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है चलो। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। सो बेसिकली देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है टू प्रोवाइड यू कनेक्टिंग वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशनल काइंड ऑफ अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर आपको टाइम प्रेजेंट करना है किसी सेंटेंस में, तो टाइम के लिए दीज आर द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। अब बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, तो बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, दैट, these are the subordinate conjunction you will be using। कॉन्ट्रास्ट की बात करें मैम, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? अगेन अगर मैंने बताया था और तुम लोगों को याद होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एन ओपिनियन collide, two different opinion means one is going to give you a positive aspect of the sentence and one which is going to give you a negative aspect of a situation or a sentence, ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रास्ट। कंडीशन की बात करें, इफ अनलेस प्रोवाइडेड मतलब वेयर यू ऑलरेडी नो द रेपरकशन, when you already, definitely not repercussion but हाँ एक sort of कि अगर तुमने ये काम करा तो ये होगा। now the another action is dependent on the first action, ठीक है, कि until this is going to happen it will not, the second one wouldn't happen, right? purpose मतलब कोई सिनेरियो है, मतलब in order to provide a result for a cause you can say purpose, या of course cause, ठीक है, क्या रीजन है उस चीज का होने का, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाला विच इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये बहुत इजी है, ये मेरा फेवरेट काइंड ऑफ कंजंक्शन है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब फेवरेट है तो डेफिनेटली आई कैन नॉट यूज इट एनीवेयर, बट स्टिल जस्ट टेलिंग यू, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क इन पेयर्स, मतलब एक साथ काम करते हैं, वो अलग अलग नहीं रह सकते, ठीक है, दे आर नॉट मेंट टू बी सेपरेटेड, गलत बात होती है, ठीक है। टू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सुनना वापस से, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क इन पेयर्स टू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड, जब आप एक ही चीज की दो क्वालिटीज प्रोवाइड करते हो, both my parents and my family or friends, sorry parents family of course, both my parents and friends support me, so दोनों, both my family, both यानी दोनों ही, कौन कौन, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स दोनों ही मुझे सपोर्ट करते हैं। either or, you can either call me or text me, you can do both, ठीक है, you can either call me or you can text me again, here is an option, here is a choice, ठीक है। neither nor, he is neither rich, अब neither बुलाना है neither बुलाओ, neither बुलाना है neither बुलाओ, either बुलाना है either बुलाओ, either बुलाना है either बुलाओ, your take, ये मैंने तुम पे छोड़ दिया, आपको जो समझ में लगे, जो सही लगे आप बुलाओ, ठीक है। not only but also, she is not only great singer, वो ना ही एक ग्रेट सिंगर है बट बहुत अच्छी डांसर भी है, so she is not only a great singer but also an excellent run dancer, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इनको मैं डिटेल में तो समझाऊंगी, बट अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई कंजंक्शंस आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर आईएलटीएस एग्जामिनेशन। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजंक्शन इन आईएलटीएस, अगर हम राइटिंग पार्ट 1 एंड 2 की बात करें तो हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन रीजंस। क्या है वो रीजन? इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग ऐसे लॉजिकली। कैसे? अब मैंने आपको, अगर मैंने इनिशियली बताया नहीं बताया, डोंट रिमेम्बर, बट इफ यू रिमेम्बर देयर इज दिस पैरामीटर, एक पैरामीटर होता है आइल्स में जिसको हम कहते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस। सो इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग ऐसे लॉजिकली, ठीक है। अब बात करते हैं improves coherence and cohesion, one of the 4 scoring criteria, देखो लिखा हुआ है,
connects ideas, arguments and examples smoothly. It connects smoothly. मतलब देखो पता है, अगर हम IELTS के perspective की बात करें ना, तो वहां पे अगर बैंड डिस्क्रिप्टर्स अगर आप पढ़ने जाओगे ना, वहां पे क्लियरली लिखा है कि कोहेरेंस कोहेजन इतना स्मूथ होना चाहिए कि इट शुड नॉट कैच द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर. अब यहाँ पे मैम आप उल्टी चीजें बोल रहे हो. मैं उल्टी चीजें नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है. कभी भी अगर आप गलत सेंटेंस बनाते हो या सेंटेंस को कोहेसिवली अलाइन नहीं करते हो या उनको प्रेजेंट नहीं करते हो अच्छे से, तो वो ना, जैसे कि कोई चीज है, कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रही हो, कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, उसको आप पढ़ रहे हो, ओके यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग इट, सडनली देयर इज दिस ट्विस्ट कम्स, जहां पे आपको ना वो लाइन 2 बार या 3 बार पढ़नी पड़ जाती है. क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया. योर ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस कि ये क्या हुआ या ये हो क्या रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है. राइट वो एक सुना होगा ना मीम, अरे कहना क्या चाहते हो. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि जब भी एग्जामिनर आपका आंसर शीट पढ़े, उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कहना क्या चाहते हो तुम. दैट इज द थिंग. सो ये क्यों होता है? बिकॉज ईदर वी हैव यूज्ड अ रॉन्ग ग्रामेटिकल सेंस इन मेकिंग द सेंटेंसेस, or we might have missed on something which is very important in order to come up with the correct meaning of the sentence, right? So ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है. तो this is what I mean when I say कि it should not catch the attention of the examiner. का मतलब वो इतना सही होना चाहिए, उसकी connection, उसकी presentation, उसको the way you are presenting it, the way you are sequencing it, उसकी सिंक्रोनाइजेशन इतनी प्यारी होनी चाहिए ना कि वो अटेंशन नहीं ग्रैब करना चाहिए. एक बार पढ़ा, समझ में आ गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया. ठीक है, दिस शुड बी द थिंग. अब बात करते हैं पार्ट 1 to 3 आइल्स की स्पीकिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है ये. तो इट एनहांसेस फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी इंप्रूव करती है, कोहेरेंस इंप्रूव करती है, makes answer more structured and natural. It helps to understand answer in such a manner that it looks structured. अब जब भी हम देखो स्पीकिंग की बात करें या राइटिंग की बात करें ना, तो बेसिकली व्हाट वी यूज टू डू इट कि हम ना हमेशा पॉइंटर्स में आइडिया क्रिएट करते हैं. इफ यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी आई शेयर विद माय स्टूडेंट्स. तो हमारी आदत क्या होती है कि हम उसको सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं, हम उसको स्ट्रैटेजाइज करके पॉइंटर्स को लिखते हैं. अब बेसिकली आईएल्स में पॉइंटर्स प्रोवाइड करना तो इट्स लाइक आउट ऑफ द रूल बॉक्स. ठीक है, हम पॉइंटर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. हमें प्रोवाइड करना है आंसर फ्लुएंसी के साथ, विद अ प्रॉपर, यू कैन से इन शॉर्ट स्टोरी टेलिंग में प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग में प्रोवाइड करने के लिए हमें पॉइंटर्स को ना सबसे पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट डाल के हमें उसको साइन पोस्टिंग यूज करके वी हैव टू कम अप विद द प्रॉपर आंसर, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे. उसके बाद उनमें कनेक्टर्स ऐड करेंगे, कंजंक्शंस ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट अ गुड स्टोरी. राइट, सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. shows grammatical range and accuracy. Of course, जब आप अच्छे से conjunctions use करोगे, जब आप punctuation use करोगे, that definitely is going to represent that how beautifully and how accurately and precisely you have a very good knowledge of the grammar. And definitely when I say knowledge of the grammar, I don't want you to be diving deep into the complexity of the grammar, but the basic grammar that is important for you to maintain a sentence, right? And the meaning, of course. चलो, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, क्या है. अब चलो स्पेसिफिकली बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. हालांकि मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी आप लोगों से. तो यहाँ पे देखो, यूज दीज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और लिस्ट ऑफ सिमिलर आइडियाज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है. दिस इज हाउ योर कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लुक लाइक. फॉर इज यूज्ड फॉर अ रीजन, एंड इज यूज्ड फॉर एडिशन. एडिशन किसमें? एडिशन ऑफ आइडियाज. नॉन मतलब नेगेटिव अग्रीमेंट, बट मीन्स कॉन्ट्रास्ट, जहां पे टू ओपिनियन कोलाइड करते हैं, वन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड अनदर इज गोइंग टू बी द नेगेटिव वन. और का मतलब चॉइस होता है, ऑप्शन होता है. इट इज टोटली द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट यू वांट टू ऐड और व्हाट यू वांट टू चूज विद. ओके, yet का मतलब unexpected result. I mean something again unexpected is again a contradictory thing. ठीक है, so का मतलब result कि आप ये करोगे, so the reason is, the result is, so the outcome is, this is how you are going to present. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आ जाओ, एक थोड़ा डाइव डीप कर लेते हैं हल्का सा इसमें, so that you will be able to understand how to use them in a proper sentence. F is used for shows reason or cause. It shows reason or cause. कैसे? I stayed home for I was feeling unwell. I stayed home
फॉर हम बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर रीजन, नो डाउट, बट हम यूजुअली इस चीज के लिए यूज नहीं करते. बट अगेन द एक्चुअल यूज ऑफ फॉर इज टू गिव द रीजन. सो आई स्टेड होम, मैं घर पे रुकी बिकॉज आई वाज फीलिंग अनवेल और फॉर अ रीजन दैट आई वाज फीलिंग अनवेल. अब बात करते हैं एंड की. एड्स एंड इन्फॉर्मेशन कैसे? शी एंजॉयज रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, शी एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड डांसिंग. लाइक दिस ऑल्सो, लाइक मैंने इनिशियली वो जो ब्रेड बटर वाला दिया था एग्जाम्पल, रिमेंबर, राइट. नॉर, नॉट जॉइंस टू नेगेटिव आइडियाज. हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखना कि नीदर और नॉर और नाइदर नॉर जो भी है, ये जो टर्म है हमारे पास, चाहे वो आप इसको कोरिलेटिव की तरह यूज करो या नॉर को इंडिविजुअली यूज करो, वो हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होंगे, वो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज नहीं होंगे. ये तो हो गई पहली पॉइंट. दूसरी पॉइंट, नाइदर और नॉर हमेशा एक साथ जाएंगे, हमेशा. अगर आप नाइदर अकेले लिखोगे या अगर आप उसको अलग से प्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू, यू आर गोइंग टू एंड अप हैविंग अ रॉन्ग ग्रामेटिकल आंसर. ठीक है, बट अब हम बात करते हैं नॉर की. तो नॉर एक इकलौता, नॉर एंड और, दीज आर टू वर्ड्स जिनको हम अकेले भी यूज करेंगे तो वो सही ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. आई होप नाउ यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ इट. ठीक है, चलो. बट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट. आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब आई वांटेड टू गो आउट व्हिच इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब मैं बाहर जाना चाहती थी, बट इट स्टार्टेड रेनिंग व्हिच इज अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव फॉर मी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी. और का मतलब होता है प्रेजेंट चॉइसेस और ऑल्टरनेटिव्स. वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू और वुड यू लाइक टी. हाँ ठीक है, वुड यू लाइक टी और कॉफी और वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. Yet matlab introduces unexpected contrast. He was tired, yet he continued working. So, shows result or effect. It was raining, so we stayed indoors. A reason, because it was raining, so we stayed indoors. So, this is how you are going to use these coordinating conjunctions. I hope now it is clear for you all. ठीक है, आगे बढ़े. अब बढ़े आगे, जल्दी बताओ. अब देखो, rules for using coordinating conjunctions. क्या रूल होते हैं? रूल देखो, ऑफ कोर्स हर ग्रामेटिकल टॉपिक के होते हैं. ठीक है, यूज कॉमा बिफोर कंजंक्शन व्हेन जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऐड अ कॉमा बिफोर कंजंक्शन. ये मुझे पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा. अब यहाँ पे जान लो. देखो, आई वांटेड टू स्टडी बट आई वाज टू टायर्ड. अब अगर इसको मैं देखो बाइफिकेट करूं, आई वांटेड टू स्टडी, I was too tired. ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. ठीक है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इन दोनों को किसी और सेंटेंस की नीड नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने की. तो अब क्या लिखा है? आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती थी और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी. अगेन इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे हम इनको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब क्योंकि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बट के पहले कॉमा लगाएं. नाउ दिस इज व्हाट अ रूल दैट कम्स विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसको याद कर लो कभी भी आप. अब आपको पता है बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं. क्या क्या पता चल चुकी है? यू नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, नाउ व्हाट एल्स डू यू नो. इंडिपेंडेंट क्लॉज तो पता चल चुका है, डिपेंडेंट क्लॉज भी पता चल चुका है, और क्या पता चल चुका है आपको? और आपको पता चल चुका है व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, रूल ऑफ कॉमा इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इतनी सारी चीजें पता चल चुकी है. देखा, इतनी सारी चीजें पता चल गई. ठीक है, आई नो. नाउ चलो, अब मुझे पता है यू गाइज विल बी एबल टू डू गुड. यू गाइज विल बी एबल टू कम अप विद अ गुड एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कंजंक्शंस. ठीक है, चलो आगे बढ़े. हो गया, डन. नाउ अगेन, connect words or phrases of equal importance. For example, she enjoys swimming and running. Swimming is a verb, running is verb. मतलब both are a kind of athlete or athletic sort of a thing or an outdoor activity you can say. You can have tea or coffee. ठीक है, तो basically coordinating conjunctions हमेशा दो equal level की चीजों को connect करने में help करता है या equal level की चीजों को contradict करने में help करता है.
Avoid overusing simple conjunction. Always using and. Try using more specific linking word like furthermore, in addition or moreover. मैम ये क्या है? मैम बताएंगी अभी अगले सेशन में, अभी शांत हो जाना, ठीक है? अभी सब बताऊंगी क्या है फर्दरमोर क्यों यूज होता है, एडिशन, इन एडिशन टू क्यों यूज होता है, एडिशनली क्यों यूज होता है, मोर ओवर क्यों यूज होता है, एज वेल एज क्यों यूज होता है. आई टेल यू एवरीथिंग, ठीक है? चलो. डोंट स्टार्ट सेंटेंस विद फैन बॉयज इन फॉर्मल राइटिंग, ठीक है? While acceptable in informal writing, starting sentences with coordinating conjunction but and or should be avoided in IELTS writing task. 2. तो coordinating conjunction के साथ sentence start नहीं करना है because definitely you would need a sign posting formal letter writing में या formal essay writing में. तो इसीलिए it is important कि you use them for connection, you use them for cohesion and not for just starting off with a particular essay. ठीक है? So these are the things. आगे बढ़े. Chalo. Okay, so yeah, we are done. Amazing. So chalo, all the very best to all the students who are preparing for their IELTS examination. This is all about conjunction, but not exactly all about conjunction, all about conjunctions introduction. I hope you are going to like this session. And make sure you practice, as I have already provided you DPPs in our PW application where you can get access to DPPs and practice the question. And practice करना पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी. चलो, बाय बाय, टेक केयर.